ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قومی، بین الاقوامی اور اسلامی دنیا کی اہم خبروں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام ورلڈ بلیٹن۔ بلیٹن سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم سرخیوں پر۔ آیت اللہ خامنئی کا پیغام، حج کا اہم مقصد ہے امت اسلامیہ کو کفر، ظلم اور استکبار کے خلاف متحد کرنا۔ کمال خلیجدار نے اردوغان کو بتایا روس کی کٹ پتلی اور جعلی رہبر۔ تہران میں انٹرنیشنل آئل، گیس، ریفائننگ اینڈ پیٹروکیمیکل نمائش شروع۔ خود مختار نہیں ہے یورپ، میکرون کو ہے درماندگی کا احساس۔ فرانس کے سابق صدر نکولس سرکوزی کو 3 برس قید کی سزا۔ 9/11 کے بعد امریکی جنگوں کی بھیٹ چڑھنے والے لوگوں کی تعداد 4.5 ملین سے زیادہ۔ ایرانی صدر سے ملاقات کے لیے بارڈر پر پہنچیں گے پاکستانی وزیر اعظم۔ سوڈان کے حالات سے پریشان ہوئے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔ سربستان میں ایک افواہ نے خالی کرا دیے 115 سے زائد اسکول۔ اگلے 6 مہینے میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانا چاہتا ہے امریکہ۔ اب خبر تفصیل سے۔ کفر، ظلم و استکبار کے خلاف اسلامی اتحاد، حج کا ایک اہم مقصد۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی نے ادارہ حج و زیارات کے عہدیداران، منتظمین اور کچھ حاجیوں سے ملاقات میں فلسفہ حج کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حج عالمی استکبار، کفر اور ظلم کے خلاف امت اسلامی کے اتحاد کا ایک اہم مقصد ہے۔ انہوں نے حج کے بارے میں درست نقطہ نگاہ اور اس اہم فریضے کے درست ادراک پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ حج ایک عالمی، تمدنی اور فرہنگی موضوع ہے اور اس کا ہدف امت مسلمہ کا ارتقاء، مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں قریب کرنا اور کفر و ظلم، استکبار اور انسانی و غیر انسانی بتوں کے مد مقابل امت اسلامیہ کا اتحاد ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے آیات قرآنی کی روشنی میں دلیل پیش کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو انسانی معاشرے کی عمارت قائم رہنے کا ذریعہ قرار دیا اور حج کے دنیاوی اور اخروی فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر حج نہ ہو تو امت مسلمہ بکھر جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر نے حج کو عالمی وعدہ گاہ قرار دیا اور آیات قرآنی کو سند قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ حج کے لیے تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے۔ آپ نے کہا کہ تمام انسانوں کو تاریخ کے ہر دور میں ایک خاص جگہ پر مخصوص ایام میں جمع ہونے کی دعوت انتہائی اہم اہداف اور کثیر منفعت کا پتہ دیتی ہے جو اس دعوت الہیہ میں موجود ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ امت اسلامی کا اتحاد اور استکباری شیاطین سے مقابلہ ان اہداف کا جز ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج کے متعدد دنیاوی فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ اس عظیم اجتماع میں مسلمان صہیونی حکومت اور استکباری طاقتوں کی دخل اندازی کے مقابلے میں اپنی صفارائی اور قوت کا مظاہرہ کریں اور دنیا کے ظالموں کے سلسلے میں سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حج کے اخروی فوائد کا ذکر کرتے ہوئے حج کے ہر عمل کو عالم غیب اور عالم روحانیت کا ایک دریچہ قرار دیا اور حجاج کرام سے فرمایا کہ تضرع، دعا، اخلاص اور بندگی سے دلوں کو ہر اس چیز سے پاک کر لیجئے جو یاد الہی میں رکاوٹ پیدا کرے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دنیا کے مسائل و حالات سے آگہی اور مسلم اقوام کی صورتحال سے واقفیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حج کے ایام اقوام عالم اور ان کے مسائل سے آگہی کا بہترین موقع ہے۔ اس موقع پر انسان خود کو جھوٹے میڈیا اور نیوز ایجنسیوں کی جھوٹی خبروں کی رو میں بہہ کر دنیا کے حقائق سے دور ہونے سے بچا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم دنیا کے حالات سے باخبر رہیں گے تو دشمن کے اہداف اور بعض چیزوں پر اس کے اصرار کی اصلی غرض و غایت اور اس کی نیت کو سمجھ سکیں گے۔ چنانچہ بہت سے امور میں ہمارے عہدیداران بھرپور طریقے سے بیدار تھے تو بہت سے علاقائی و عالمی معاملات میں ایران کو بہت اچھی پیش رفت حاصل ہوئی اور امریکہ تل ملا کر رہ گیا۔ یہ حواس بجا رکھنے کا نتیجہ تھا۔ آیت اللہ خامنئی نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ متمدن ہونے کے دعوے دار ممالک جو در حقیقت تہذیب سے پوری طرح بیگانہ ہیں، آج بھی سیاہ فام اور سفید فام، یورپی و غیر یورپی جیسی نسل پرستی میں مبتلا ہیں۔ ان کی نظر میں ان کے پالتو جانور بھی بعض انسانوں سے بدرجہ بہتر ہیں۔ پناہ گزینوں کے سمندر میں غرق ہونے کے پے در پے واقعات سے اس حقیقت کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ اگلی خبر میں ترک انتخابات میں اردوغان اور حکومت کے بیچ دیوار بنے کمال خلیجدار کی تند بیانی کی بات کریں گے۔ کمال خلیجدار کا اردوغان پر زبانی حملہ، بتایا روس کی کٹ پتلی اور جعلی لیڈر۔ ترک انتخابات میں موجودہ صدر رجب طیب اردوغان اور مسند حکومت کے بیچ سب سے بڑی رکاوٹ بن کر کھڑے مخالف امیدوار کمال خلیجدار نے ترک صدر پر زبانی حملہ بولتے ہوئے انہیں روس سے وابستہ ایک جعلی اور ڈھونگی لیڈر بتایا ہے۔
मुल्क के सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में दाखिल होने वाले तुर्की के इत्तेहादी अपोजिशन के उम्मीदवार खलीज दार ने कहा कि वो मुल्क को एक बीमार जहनियत के हाथों में नहीं छोड़ेंगे, जिससे आने वाले कुछ वक्त बाद तुर्की में मुहाजिरीन की तादाद 10 मिलियन से बढ़कर 30 मिलियन तक पहुंच सकती है। कमाल खलीजदार ओगलू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी एक वीडियो में कहा कि तुर्की में बढ़ रही मुहाजिरीन की तादाद मुल्क की आबादियाती साख्त के लिए ख़तरा साबित होगी। हमने मुल्क को ऐसे ही नहीं हासिल किया, ये हमें ऐसे ही कहीं गली कूचों में नहीं मिल गया। हम इसे किसी ऐसी बीमार जहनियत के हवाले नहीं कर सकते जिसने मुल्क में बिना किसी कायदे, ज़ाबिते और इम्तियाज़ के 10 मिलियन से ज़्यादा पनाह गुज़ीनों को जगह दे दी। अर्दोगान के खिलाफ तुंद लहजा अपनाते हुए खलीजदार ने कहा कि हम तुर्की को किसी ऐसे इंसान के हवाले नहीं कर सकते जो औरत को सिर्फ एक चीज़ समझता है। अर्दोगान मुखालिफ पार्टियों की तरफ से सदारती इंतखाबात के मुश्तरका उम्मीदवार ने मुल्क की आवाम से अपील करते हुए कहा कि तुर्की को रूस से वाबस्ता जाली रहनुमा के हाथों में ना छोड़ा जाए। गौरतलब है कि 28 मई को होने वाले इंतखाबात के दूसरे मरहले में मौजूदा सदर रजब तैयब अर्दोगान और हिज़्ब इख्तलाफ के उम्मीदवार कमाल खलीजदार ओगलू के दरमियान सदारती इंतखाब जीतने की दौड़ जारी है। अगली खबर जद्दा में होने वाले अरब लीग के इजलास में बशार असद की शिरकत को लेकर है। शामी सदर बशार असद अरब लीग के इजलास में शिरकत करेंगे। अरब लीग में 12 साल बाद दमिश्क की वापसी के बाद जद्दा में होने वाले अरब ममालिक के सरबराहों के इजलास में शाम के सदर बशार असद भी शिरकत करेंगे। जद्दा में एक तकरीर में शाम के वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया कि शाम के सदर जुमे के दिन होने वाले अरब सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। शाम के वज़ीर ख़ारजा फैसल मिक़दाद अरब लीग कॉन्फ्रेंस से पहले होने वाले अरब वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के हवाले से सऊदी अरब में मौजूद हैं। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान और अलजज़ायर के वज़ीर ख़ारजा अहमद एताफ़ ने शाम का अरब लीग के इजलास में खैर मक़दम किया। अन-नशरा की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा में अपनी तकरीर के दौरान शामी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शाम के सदर बशारुल असद अरब रहनुमाओं के इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने अरब ममालिक की अहमियत को बयान करते हुए कहा कि तमाम अरब ममालिक सितारे की मानिंद हैं और हम अपनी दानिशमंदाना बातदबीर और दुरुस्त क़यादत की बदौलत अरबों की हैसियत से अपनी मामूल की हालत पर वापस पलट रहे हैं। शामी पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी और शाम की तामीर नौ के हालात के बारे में किसी भी तरह की क़ैद व शर्त की बात को मुस्तरद करते हुए फैसल मिक़दाद ने कहा कि कोई भी फ़रीक जो हमारे लिए शर्त लगाता है उसे ये ख़यालात अपने पास रखना चाहिए। हम भीख नहीं मांगते और ना कभी मांगेंगे। हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ हैं। ऐसे में अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है तो हम उसे खुशामदीद कहते हैं। याद रहे कि 22 रुकनी अरब लीग का इजलास सऊदी अरब के शहर जद्दा में हो रहा है, जिसमें 12 साल के तवील अरसे के बाद शाम भी शिरकत करेगा। सऊदी हाकिम शाह सलमान ने इस सिलसिले में शाम को रस्मी दावतनामा भी भेजा। अरब लीग के बानी रुकन शाम को अरब लीग के रुकन ममालिक ने 2011 में तंजीम की रुकनियत से मुअत्तल कर दिया था। गौरतलब है कि रियाज़ और दमिश्क ने एक अशरे के बाद मुज़ाकरात करके मार्च में बाहमी ताल्लुकात को बहाल करने पर इत्तेफाक किया था। अप्रैल में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दमिश्क में सदर असद से मुलाकात भी की थी। अगली खबर सूबाई और मरकज़ी हज कमेटी की मनमानी को लेकर है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत, हाजियों से ज़ायद रकम वसूल करने का इल्ज़ाम। भोपाल से सूबाई असेंबली के रुकन आरिफ मसूद ने सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया और हज कमेटी भोपाल के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ हाजियों से ज़ायद रकम वसूल करने पर थाना कोहे फ़िज़ा में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज के साथ हुकूमतों ने धोखा किया है। रुकन असेंबली और हज कमेटी के मेंबर आरिफ मसूद आज़मीन हज से ज़ायद रकम वसूल करने पर मरकज़ी हज कमेटी के सदर AP अब्दुल्ला और रियासती हज कमेटी के सदर रफ़त वारिसी समेत कई ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के लिए आज पुलिस थाना कोहे फ़िज़ा पहुँचे और कोहे फ़िज़ा थाने को इस मामले से मुताल्लिक़ सबूत भी दिए, जिस पर स्टेशन इंचार्ज ने दरख्वास्त के नुकात का जायज़ा लेने के बाद मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी कराई। आरिफ मसूद की तरफ से दी गई दरख्वास्त में कहा गया है कि हज 2023 में भोपाल से सफ़र करने वाले आज़मीन हज के किरायों की फ़हरिस्त 6 मई 2023 को हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी की थी, जिसमें भोपाल से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मुंबई से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के मुकाबले में तकरीबन 67,972 रुपये ज़्यादा अदा करना है, जबकि भोपाल और इंदौर को अक़लियती बहबूद की वज़ारत हुकूमत हिंद की तरफ से एम्बारकेशन पॉइंट बनाया गया था।
फिर किराए में इतनी बड़ी रकम के फ़र्क की इत्तला आज़मीन हज को क्यों नहीं दी गई? हज पर जाने वाले आज़मीन को 2 किस्तों के जमा होने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें इजाफी रकम के बारे में बताया गया जो आज़मीन हज के साथ बराह रास्त धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नाजायज़ मुनाफा कमाने के मकसद से आलमी टेंडरिंग ना करते हुए डिफ़ाल्टर एयरलाइंस के साथ मिली भगत करते हुए हाजियों को हज पर भेजने का ठेका दिया जो आज़मीन के साथ सीधा धोखा है। उन्होंने कहा कि दूसरी सूरत में अगर मुसाफिरों को किराए के बारे में पेशगी इत्तला दे दी जाती तो वो भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट से सफ़र शुरू करने के बजाय बराह रास्त मुंबई से अपना सफ़र शुरू करते। आरिफ मसूद ने कहा कि मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी का रुकन होने के नाते मैंने जनाब AP अब्दुल्ला कुट्टी को मुत्तला किया। चेयरमैन सेंट्रल हज कमेटी मुंबई और चेयरमैन मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी जनाब रफ़त वारिसी से किराया कम करने और ग्लोबल टेंडरिंग कराने की भी दरख्वास्त की, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने की वजह से मैंने मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के रुकन के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बावजूद आज तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। ताहम कई दीगर रियासतों से सेंट्रल हज कमेटी को ज़्यादा किराया वसूल करने की शिकायत मौसूल हुई हैं। यही वजह है कि हम आज FIR दर्ज करवा रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि इससे पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता हफ्ते आज़मीन हज 2023 के कुल खर्च का ऐलान किया था जिसमें एडवांस और पहली किस्त के बाद आखिरी किस्त के तौर पर जमा की जाने वाली रकम के साथ ही जोहफ़ा कैटेगरी का इंतखाब करने वाले आज़मीन हज से मीक़ात के लिए 1097.1 सऊदी रियाल की शक्ल में 24,907 रुपये जमा करने को कहा गया था, जिसकी मुखालफत होने पर मंगल को ही हज कमेटी ने अपना फ़ैसला बदलते हुए मीक़ात के लिए 115 सऊदी रियाल मुकर्रर किए थे और आज़मीन हज को जमा रकम के अलावा 2,611 रुपये जमा करने की हिदायत दी थी। आज के बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। कौमी, बैनुल अक़वामी और इस्लामी दुनिया की अहम ख़बरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।